Good afternoon, everyone. So today we are going to start with 8th chapter, that is about the cell, which is the basic structural and fundamental unit of life, right? तो ये सेल के बारे में जो है हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, राइट? इन योर लोअर क्लासेस ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज सेल. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म और यू कैन से एक थिंग को टू बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द बेसिक यूनिट इज व्हाट? सेल ओनली, जिसको हम फंडामेंटल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं, राइट? तो बेसिकली जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे इन्वॉल्व इसमें, राइट? व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल एज वेल एज फॉर the discovery of other theories, not discovery, you can say other parts या theories which is dealing with the cell. Okay, so one by one we are going to deal with all the different that particular contribution of different scientists also, as well as different types of cells we are going to discuss. Prokaryotic cell, eukaryotic cell, है ना? इस टॉपिक में हमको बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स आने वाले हैं which is mainly related to the cell only, because the chapter itself deals with the cell, which is the basic unit of life. तो इसमें we should understand first about the unicellular organisms and the multicellular organisms, then about on the basis of what? Number of cells. If one organism consists of only one cell, then that type of organisms are known as unicellular organisms, है ना? If there is more than one cell या organisms made up of many cells या multiple cells, then that organisms are known as multicellular organism. ये हमको पता है already, right? What are the examples of unicellular organisms? Yeast, bacteria, right? These are what? Unicellular organisms. And in case of multicellular organisms, we have plants, animals, right? Yes, है ना? So these are what? Multicellular organisms. Then on the basis of the nucleus, कितने टाइप्स के सेल्स हो जाएंगे? 2 types of cells. If the cell has well defined nucleus, then it is known as eukaryotic cell. If the cell doesn't have a well defined nucleus as well as other membrane bound organelles are also absent, तो उस चीज में that cell becomes prokaryotic cell. That cell is known as prokaryotic cell, right? तो complete chapter में we are going to discuss about prokaryotic as well as eukaryotic cells only, और उन्हीं के जो ऑर्गेनल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल, राइट? तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस सेल. तो बेसिकली जो इसका डेफिनेशन है, दैट इज सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किसी भी एक थिंग को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, इसका मतलब उसकी शुरुआत किससे होती है? एक सेल से ही होती है, राइट? अब उसकी डिस्कवरी के लिए जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज रॉबर्ट हुक, राइट? तो सेकेंडली वी सी रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड सेल विच लुक्स लाइक व्हाट? हनीकॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर. अब डायरेक्टली उन्होंने सेल नाम नहीं दिया था इसको. इट वॉज नोन एज अर्लियर, इट वॉज नोन एज व्हाट? लिटिल रूम्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स विच वॉज लुकिंग लाइक हनीकॉम्ब मेज लाइक स्ट्रक्चर, जिसको उन्होंने फर्दर नेम दे दिया क्या? सेल, राइट? देन अदर साइंटिस्ट एंटोन वैन लियोनहुक, he has contributed mainly in the microbiology field, but जो basic एक living cell की शुरुआत हुई थी from the pond cell, from the pond, right? Basic living organism, or you can say living cell. The first living cell was observed and described by this microbiologist, that is Anton van Leeuwenhoek, right? तो इनका contribution mainly रहा है एक particular organism को describe करने में कि that is a living organism, okay? नेक्स्ट, अब इनका कंट्रीब्यूशन एज आई टोल्ड यू कि माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में ज़्यादा रहा है. इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, राइट? बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन से टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज, तो उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंटिस्ट का रहा है. सो दैट इज वाई जो है मेनली ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग in order to describe a particular living cell. ठीक है. Next, about microscope. तो as we know, tiny living organisms cannot be seen through the naked eyes. तो उसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, that is known as microscope. उसमें भी different types आ जाते हैं. But if you want to observe a cell
उसके भी बेसिक पार्ट्स इफ यू वांट टू ऑब्जर्व देन वी कैन यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बट अगर सेलुलर कंपोनेंट्स की स्टडी अगर आपको करनी है तो उसके लिए वी रिक्वायर एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो विद द टाइम वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स कि जिससे जो है हम डिफरेंट पार्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेल थ्योरी। अब इन दिस शेल्डन एंड शोन they were the two scientists who contributed in making of the cell theory, right? कि सेल जो है किससे बना हुआ है, या यू कैन से वो तो हो गए उसके सेलुलर कंपोनेंट्स, बट बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स ओनली, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल और एनिमल सेल डजंट मैटर, बट बोथ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स ओनली। तो इसमें जो ये शेल्डन थे, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द बॉटनी फील्ड, राइट, बॉटनिस्ट थे, एंड शोन वाज अ साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इन द जूलॉजी फील्ड। सो एनिमल सेल्स के बारे में मेनली शॉन ने बताया था एंड शेल्डन ने अबाउट दी प्लांट सेल्स, कि बोथ दिस ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स ओनली। ओके, सो as you can see in the year 1838 this Sheldon observed this that the plants are composed mainly of cells only। अब cells plant cell में कौन कौन से cell organelles आ जाएंगे, उनका function क्या है, उनका role क्या है, उनके structure कैसे हैं, that also we are going to discuss one by one later on, ठीक है। Next, Schwann in 1839 he reported that cells had a thin outer layer which is known as plasma membrane। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं in our further lectures, right? So he mainly found that plant cells have cell wall। अब इसमें जो है different parts of a particular cell, whether it is plant cell or animal cell, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं plant cell की as well as animal cell की भी बात कर रहे हैं, fine। So in both the cells को ध्यान में रख के इन्होंने एक hypothesis को जो है generate किया था, and that says that both the plant as well as animals are made up of cells, okay। Then as well as the product of cells in the sense obviously जो उसके मेन सेलुलर कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, उनमें कौन से फंक्शंस कैरी आउट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जब तक हम सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे विल नॉट कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। बिकॉज जो बेसिक थ्योरी है बिहाइंड दिस सेल इज दैट सेल पर्टिकुलरली मेनली कंपोज्ड ऑफ मेनी सेलुलर कंपोनेंट्स जिनका फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो वो फंक्शंस भी हम देखेंगे। Then Virchow, he was another scientist. In 1855 he explained about what? He explained about cells which divides further, right? अब cell जो है एक बार divide कर रहा है तो obviously it is going to form new cells, another cells. But जो previous उसके cells है वो कहाँ से आए? So mainly he also expanded the cell theory only। Virchow ने cell theory को ही और ज़्यादा expand किया और उन्होंने ये बताया कि every cell arise from the pre-existing cells, right? जो सेल्स अराइज हो रहे हैं, न्यू सेल्स भी जो फॉर्म हो रहे हैं बाय दी सेल डिवीजन या सेलुलर डिवीजन, तो वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं विद द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। उसमें मेनली जो है डिफरेंट प्रोसेसेस हो जाते हैं सेलुलर डिवीजन में, विच वी विल बी स्टडिंग अबाउट हाउ अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड बाय अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। वो भी फर्दर चैप्टर्स में हम उसको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक सेल डिवाइड करता है, कौन से प्रोसेस से डिवाइड करता है, राइट। बट एज दिस सेल्स आर डिवाइडिंग, उसके पहले वाले या प्रीवियसली या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो रहने वाले उन्हीं से इनका क्या होगा, फर्दर डिफरेंशिएशन या डिवीजन। सो दैट इज व्हाई एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी वाज गिवन बाय दिस वर्चाउ एंड ही सेड दैट ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस वाज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ दिस साइंटिस्ट दैट इज वर्चाउ। तो इससे जो है हमको मेनली सेल थ्योरी से ही टू इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आती है। फर्स्ट इज अबाउट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स as well as the product of cells, and second statement ये पता चलता है हमको जो expanded form है cell theory का, that is all the cells arise from the pre-existing cells only, okay। Next, all cells contain what? अभी देखो अगर आप एक सेल की बात कर रहे हो तो obviously main जो उसमें parts आने वाले हैं which is present in all cells, that is what? Cytoplasm, then we have plasma membrane। ये basic दो चीज़ें तो रहने ही वाली है। देन न्यूक्लियस की अगर आप बात करते हो, देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें वेल डिफाइंड नहीं होने वाला है वो, बट उसके जैसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज न्यूक्लियोइड। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, देन वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन इट। तो ये तो जो बेसिक पार्ट्स हो गए विच ईच एंड एवरी सेल पजेस, ओके। तो उसमें से ही वन बाय वन हम कुछ जो है टर्म्स के बारे में देखने वाले हैं।
So here we have all the cells contain cytoplasm. Cytoplasm basic हमको रोल इसका पता है कि it is what jelly like substance or a fluid like matrix which is mainly present inside the cell only, जिसमें all the cellular activities or you can say functions, right, is mainly performed in this cytoplasm only if we are talking about prokaryotic cell, right? If अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स, बट वो ऑर्गेनल्स का जो लोकेशन रहेगा दैट इज ऑल्सो इनसाइड दी साइटोप्लाज्म ओनली. फाइन. सो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मैट्रिक्स वेयर सेलुलर एक्टिविटीज एज वेल एज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर बेसिकली टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट, एक्सक्रीशन, different life processes which is necessary for an organism in order to survive. वो सारी चीज़ें एक सेल के अंदर ही होने वाली है और उसमें भी कौन से पार्ट में? साइटोप्लाज्म में, राइट. सो दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट. अगर आप साइटोप्लाज्म के बाद अगर एक प्रोटोप्लाज्म की भी बात करते हो, राइट, प्रोटोप्लाज्म, सो इसमें मेनली आपके जो है न्यूक्लियस को भी आप कंसिडर करोगे प्लस द साइटोप्लाज्म, राइट. न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, बिकॉज इन ऑर्डर टू कंसीडर अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने सेल बोल दिया है तो इसका मतलब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज देन ओनली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स, राइट. तो सेल्स की अगर आप बात कर रहे हो उसमें भी आप अगर न्यूक्लियस को इंक्लूड कर रहे हो सेल के अंदर अपार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, देन आप एक पर्टिकुलर थिंग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से बोल सकते हो, बिकॉज न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ अ सेल विच इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? जेनेटिक मटेरियल. Genetic material in the form of DNA और RNA which is present inside the nucleus of a cell. इस वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं? लिविंग सेल, राइट. उस सेल के आगे हमने वर्ड डाल दिया है दैट इज लिविंग स्टेट. सो दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सेकेंडली वी हैव राइबोसोम्स. अब ये राइबोसोम्स जो है दीज आर अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट freely in the cytoplasm also, as well as it can be found in as a bounded form also with the other cellular component such as endoplasmic reticulum. उसमें भी अगर हम RER rough endoplasmic reticulum की बात करें तो, right? Okay. So ribosomes, these are non-membrane bound organelles which is found in the cytoplasm only. तो अगर directly cytoplasm में है means we are talking about free ribosomes, right? As well as अब ये तो बात हुई कि फ्री राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट डायरेक्टली इनसाइड द साइटोप्लाज्म. कुछ और भी जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ योर अदर सेल ऑर्गेनल्स आल्सो, राइट. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. सो दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन डीएनए आल्सो. अगर डीएनए होगा तो ही उसके खुद के क्या बनेंगे? प्रोटीन्स, राइट. सो फॉर द मेकिंग और फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स वी हैव अनदर स्ट्रक्चर दैट इज राइबोसोम्स, राइट. So apart from the free ribosomes which is present in the cytoplasm, other cell organelles such as chloroplast and mitochondria also shows the presence of ribosomes. And जैसा अभी मैंने आपको डिस्कस किया, rough endoplasmic reticulum RER, this also has ribosomes which are bounded on the surface of endoplasmic reticulum if we are talking about eukaryotic cell. Clear? Then some extra information related to some cells only. If we talk about size of a cell, तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो ऑब्वियसली दीज आर वेरी माइन्यूट इन साइज इन माइक्रोमीटर्स, राइट. उसमें भी अगर आप स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हो तो वी हैव माइकोप्लाज्मास विच इज बेसिकली अ सेल विदाउट सेल वॉल. तो जो एक्चुअल बैक्टीरिया का साइज रहेगा दैट इज अराउंड 1 to 5 माइक्रोमीटर्स एंड ऑल, राइट. सो माइकोप्लाज्मा की अगर आप बात करते हो तो उसके पास सेल वॉल है नहीं, इट इज डिवॉइड ऑफ द सेल वॉल. उसका जो साइज रहेगा दैट विल बी अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर. देन नेक्स्ट लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज ऑफ द ऑस्ट्रिच एग, राइट. ये अनदर एग्जाम्पल है. लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल या न्यूरॉन जिसको हम बोल रहे हैं, फाइन. देन साइज ऑफ द बैक्टीरिया ऑब्वियसली इन माइक्रोमीटर्स. वायरस की अगर आप बात करते हो तो दैट इज इन नैनोमीटर्स. ये जस्ट कुछ पॉइंट्स है विच यू नीड टू रिमेंबर, ओके. देन ह्यूमन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. सो वी हैव दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके. कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स हैं इन विच यू विल नो अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ अ सेल विच मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ओके. तो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल्स, इन दैट वी हैव cells
as well as which is combining together to form tissues. तो different जो tissues हैं in case of plants, they are made up of cells only, such as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, which is a part of plant, which is the types of plant tissue, right? Yes, complex permanent, complex और simple permanent tissue. Okay, simple permanent tissue के जो types हो जाते हैं. Then secondly जो है, that is we have animal cells. यहाँ पे example आपको दिख रहा है, nerve cell, muscle cells, bone cells, reproductive cells, right? तो ये कुछ examples हैं in which you can see there are typical shapes. For example, nerve cell has a typical shape, right? So not only this is like disc shape or polygonal and all, we have some cells which is having a typical shape, such as if we talk about muscle cells, then nerve cells, etc. Okay, cells are of two types as we have discussed. They are prokaryotic and eukaryotic. तो उसमें से जो first है, that is about prokaryotic cell, that we are going to start now. So on the basis of nucleus, when it is not defined clearly, without nuclear membrane, without membrane bound cell organelles, at that time it is known as what? Prokaryotic cell, जिसमें उसका मीनिंग ही निकल करके आता है, नेम से ही इट इज अंडरस्टूड. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, राइट? प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यू कैन से अनडिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल. कुछ पॉइंट से रिलेटेड टू दिस प्रोकैरियोटिक सेल, तो वन बाय वन वी विल सी. दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एज वेल एज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. जैसे हम इस चैप्टर में अभी डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स वी आर गोइंग टू स्टडी, बट ऑब्वियसली इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वी हैव साइटोप्लाज्म विच इज कॉमन पार्ट विच इज प्रेजेंट इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं, मेनली एक्टिविटीज विच आर मेनली कंट्रोल्ड बाय दी सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली. बट ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंस दिस सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, सो बेसिक जो प्रोसेसेस है वो किसके अंदर कैरी आउट होंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट? ओके. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोकैरियोटिक सेल इट इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स सच एज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, और यू कैन से साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा विच इज सेल विदाउट सेल वॉल, अभी हमने डिस्कस किया. लेटर ऑन इट इज नोन एज व्हाट? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट इट वॉज नोन एज, राइट? Then they are generally smaller and multiply more rapidly. अगर हम उसके साइज की बात की जाए तो it is very minute in size, अभी हमने डिस्कस किया, few micrometers में रहेंगे. Then secondly, इनका rate of division या multiplication अगर हम बोलते हैं तो it is very fast, very rapid. Fine. Like for example, if we are talking about one bacteria, Escherichia coli, E. coli की अगर आप बात करते हो तो it divides very rapidly. Generation time जो है उसका around 20 minutes रहता है, कि जिसमें one cell is going to divide and it is going to give rise to 2 new cells, right? तो इनका generation time जो है काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा? कम क्या रहेगा? Fast रहेगा. Okay, so they multiply rapidly as compared to the eukaryotic cells. Next point, they vary in shape as well as size. Obviously, है ना, depend कर सकता है ये on the basis of a particular organism. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स, कोकाई, स्पिरुलम, रॉड शेप, राइट? बैसिलस, बैसिलाई दैट इज ओनली रॉड शेप, शॉर्ट रॉड्स, लॉन्ग रॉड्स उसमें हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है उसके साइज में भी, शेप में भी. साइज में इस वजह से बिकॉज जो आइडियल उसका साइज है इन माइक्रोमीटर्स, उससे और भी कम हो सकता है, मतलब रेंज बाय द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ व्हाट? सेल वॉल. क्लियर है? Normally cell wall is present, but if bacteria is devoid of cell wall, then in that condition it is known as what? Mycoplasmas. So these are about different shapes of bacteria: Bacillus, Cocci, Vibrio, Spirulum. Fine. तो ये different shapes से हम deal करते हैं when we are actually talking about what? Bacteria. अब ये bacteria से ही related जो है, या you can say prokaryotic cell general, उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो दिस इज एन आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? अ बैक्टीरियल सेल और अ प्रोकैरियोटिक सेल. इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? बेसिकली आउटर कवरिंग दैट विच इज सेल वॉल, देन इनर टू द सेल वॉल वी हैव प्लाज्मा membrane, then inner to the plasma membrane we have fluid filled like structure which is called as what? Cytoplasm,
राइट. तो ये तीन चीजें तो आपको पता ही है ऑलरेडी, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म. अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव अनदर पार्ट्स ऑल्सो. सेल वॉल हमने बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अदर पार्ट्स ऑल्सो, not the cell organelles but other characteristic features of a particular bacteria. So cell wall का function, as we all know, it is basically giving a particular shape to a cell, है ना. plasma membrane की आप बात कर रहे हो तो it is next to the cell wall which allows only useful materials to get inside it, right, does not allow the harmful materials to get entry inside the cell. तो ये plasma membrane का काम रहेगा. Plus we have other roles of plasma membrane also for the transportation of different molecules that we will see later on. Okay. Then cytoplasm, अभी हमने discuss किया कि it is the site for most of the processes to take place inside a cell. Fluid-like या jelly-like substance present matrix inside the cell. Apart from this, we have nucleus-like structure which is known as what? Nucleoid, in which the genetic material of a bacteria is present in the form of DNA, right? DNA के form में जो है, obviously genetic material is present inside a structure. It is not completely scattered inside the cytoplasm, but ये आप देख सकते हो एक particular region में ही reside कर रहा है. This is because of some proteins which is holding this DNA or the chromosomes or the genetic material inside this particular cytoplasm. Okay. Then ribosomes, अभी हमने डिस्कस किया for the synthesis of proteins. उसका भी डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे. What are different types of ribosomes, right? In case of prokaryotic cell also, in case of eukaryotic cell also. But basically उनका काम क्या रहेगा? For the synthesis of proteins. Okay. Then we have other parts also, capsule. ठीक है, अभी capsule, then slime layer. This is included in glycocalyx, right, which is a part of cell envelope. तो अगर आप एक सेल की बात कर रहे हो, उसके envelope, some cells may be enveloped, some are non-enveloped, right? तो ये basically एक और function इसको provide करता है, that is protection only, okay, mainly with the from the other agents which can destroy these bacteria or the prokaryotic cell, okay, या bacteria. We have another structure called as a plasmid, which is what? Extracellular chromosomal DNA, which has the ability to replicate. खुद से replication कर सकता है, या replication in the sense copies बना सकता है. Plus इसके कुछ characteristics थोड़े से extra रहेंगे as compared to normal chromosomes, जो क्या impart करता है एक particular bacteria को resistance against a particular antibiotic, right? तो इसके कुछ characteristic features रहेंगे. और भी role है, it is used as a vector in rDNA technology, जो आप later on in your higher classes you will be studying about the plasmid vectors. ठीक है. Then this flagellum या flagella, pili, these are extracellular, not extracellular, these are the structures which are present on the surface of a bacteria या prokaryotic cell. तो flagella की आप बात करते हो या flagellum की बात कर रहे हो singular, तो it helps that particular bacteria in order to locomote, okay, for the locomotion, movement. And pili, जिसको हम sex pili भी बोल सकते हैं, which actually helps in the transfer of what? Genetic material from one bacteria to another by a process known as conjugation. ठीक है, तो ये basic कुछ parts थे of a prokaryotic cell. Clear? In the next lecture we will study about each and every parts of this prokaryotic cell in detail. Okay, thank you.